Hello everyone, myself Ms. Mrunali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 4.3, that is e-waste. Now the course outcome: implement the relevant method for disposal of biomedical waste. Program outcome: PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Now the unit outcome: after completion of this video lecture, student will able to compare the characteristics of the given type of biomedical waste with other given type of waste material. Vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. E-waste. Definition of e-waste: the waste consisting of almost all type of electrical and electronic equipment, TVs, computer, mobile phone, white goods such as a fridge, washing machine, dryers, etc. अब ई-वेस्ट में क्या क्या आता है? इट कंसिस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आता है, जैसे कि टीवीज, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, वाइट गुड्स सच एज अ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रायर एक्सेट्रा. होम एंटरटेनमेंट सिस्टम, toys, toaster, electrical component with the power of the battery supply, and batteries is called as e-waste. You have to see the image of e-waste. Now the varieties of e-waste. हम देखेंगे कितने टाइप की varieties है e-waste में. There are many varieties included in the e-waste. Following are the various varieties of e-waste: personal electronical device, second monitor and laptops, third mouse, keyboard and other electronic devices, fourth scanner and copier, fifth television, sixth audio and video equipment, और seventh cell phones. द वैराइटीज़ ऑफ इक्विपमेंट, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मॉनिटर्स हो सकता है, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, ये सब. डेंजरस ऑफ ई वेस्ट और इल इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट. अब हम देखेंगे कि कौन से इसके इल इफेक्ट्स है ई वेस्ट के. फॉलोइंग आर द वेरियस डेंजर इफेक्ट और इल इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट. 80 to 85% of the various electronic products are discarded in the landfill or incinerator, which can evolve or release certain toxic gases into the air. May affect the human health and environment. 80 से 85% तक वेरियस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो लैंडफिल में और इंसिनरेशन में डिस्कार्डेड किए जाते हैं, जिसके वजह से रिलीज़ होती है सर्टन टॉक्सिक गैसेस और वो एयर में मिक्स होती है, जिसके वजह से ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ता है. द एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ लीड इन इलेक्ट्रॉनिक अलोन कॉज डैमेज इन द सेंट्रल, और जो एक्सट्रीम लेवल पे जो लीड निकलता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से, ठीक है, नर्वस सिस्टम, और उसके वजह से डैमेज हो जाता है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द ब्लड एंड द किडनी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. इतना मतलब इल इफेक्ट हो सकता है ई वेस्ट का. 20 to 50% मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट आर डिस्पोज. 20 to 50% मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर, हर साल में. प्रोड्यूस इल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, जो कि प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ को. ऑल्सो प्रोड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है. एंड फाइनली डिस्टर्ब द इकोसिस्टम्स एनवायरमेंट.
Note that only 12.5% of e-waste is currently recycled. बस 12.5% ही ई वेस्ट जो है वो करंटली रिसाइकिल हो पाया है. टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स विच कंटेन कैथोड रे ट्यूब्स hence that are considered too hazardous over the human health. The use electronic which can be further proceed to reuse, resale, salvage and recycling or disposal also considered as e-waste and its informal processing may cause serious health and pollution problem. इसीलिए ज़्यादातर डिस्पोज करने से अच्छा वो प्रोसीड किए जाते हैं, रीयूज़ किए जाते हैं, मतलब प्रोसीड इन द सेंस ऑफ रीयूज़ के लिए, रीसेल के लिए और सेल्वेज के लिए. एंड रिसाइकलिंग और डिस्पोजल ऑल्सो कंसिडर एज अ ई वेस्ट एंड इन फॉर्मल प्रोसेसिंग में कॉज सीरियस हेल्थ एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम. डिस्पोजल के वक्त सीरियस हेल्थ एंड पॉल्यूशन प्रॉब्लम हो सकता है. ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप कंपोनेंट में कंटेन द कंटेमिनेंट्स लाइक अ लीड. जितने भी स्क्रैप कंपोनेंट है उसमें लीड रहता है, कैडमियम, बेरिलियम और प्रोमोनेट्स, फ्लेम्स रिटार्डेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. नाउ नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन अ ई वेस्ट मैनेजमेंट. प्रॉपर मतलब ई वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करना एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स बैटरी, थर्मोस्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, ऑयल एंड अदर पोटेंशियली हजार्डस वेस्ट. बिकॉज उसमें प्रेजेंट होने वाली बैटरीज एंड थर्मोस्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स, ऑयल एंड अदर पोटेंशियली हजार्डस वेस्ट आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ इन अ प्लान. जैसे प्लान किया गया है उस तरीके से डिस्पोज वो नहीं हो पाता डिसिप्लिन मैनर और वेज. इट कैन हार्म टू द पब्लिक हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट. जिस तरीके से प्लानिंग की गई है वैसे तो डिस्पोज नहीं हो पाता, जिसके वजह से पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ता है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज मिलियन मेट्रिक टन में यहाँ पे सॉलिड वेट मतलब ई वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा हेडेक है मैनेजमेंट के लिए. यू हैव टू सी द इमेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट लाइक दिस. इस तरीके से जमा किया गया है मिलियन, ये 20 to 50% मिलियन मेट्रिक टन में आता है. और हर साल मीन्स ये बहुत ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक है एक मैनेजमेंट के लिए कि इसको मैनेज किस तरीके से किया जाए. Recycling of e-waste. The use of electronic product is increasing substantially over the past 2 decades and its waste become more troubleshoot and greater headache to over the human health and environment. The dumping or the landfill this e-waste is more hazardous. Dumping करना और landfilling करना भी e-waste जो है वो बहुत more hazardous रहता है. Hence reduce, reuse and recycle are only 3 option to control the e-waste. इसीलिए ऐसा बोला गया है कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल जो है ये 3 ऑप्शन ही है ताकि हम कंट्रोल कर सके ई वेस्ट को. रिसाइकिलिंग ऑफ ई वेस्ट इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ डिस्पोजल. रिसाइकिलिंग ऑफ ई वेस्ट कैन बी डन बाय डोनेटिंग यूज इलेक्ट्रॉनिक फॉर यूज विच एक्सटेंड द लाइफ्स ऑफ द वैल्यूएबल प्रोडक्ट. रिसाइकिलिंग ऑफ ई वेस्ट जो है वो किस तरीके से डन किया जाता है, डोनेट करके, मतलब ई वेस्ट को डोनेट कर दो और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर रीयूज़, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उसका रीयूज़ करो विच एक्सटेंड द लाइफ्स ऑफ द वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जिसके वजह से उसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाए और डिस्पोजल करने की ज़रूरत ना पड़े. और क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज अमाउंट में डिस्पोजल हर ईयर आता ही है ई वेस्ट का, तो रीयूज़ रिसाइकिल जो है ये बेस्ट ऑप्शन बोला है बिकॉज डिस्पोजल करना इज़ अ वेरी मच हेडेक टू दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. नाउ द समरी ऑफ दिस सेशन. ई वेस्ट हमने पढ़ा, डेफिनेशन, वेराइटीज़ ऑफ ई वेस्ट, डेंजर्स ऑफ ई वेस्ट और इल इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट हमने देखा, डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, रिसाइकिलिंग ऑफ ई वेस्ट. नाउ these are the MSBT question. This is your assignment also. What is e-waste and explain briefly. State and explain the varieties of e-waste. Explain the dangers of e-waste. Explain ill effect of e-waste. Explain disposal of e-waste. ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये. थैंक यू.